भगवद गीता मध्ये? हरे कृष्ण. Welcome all of you for this session. So you can repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudire. Tato Jayamudire. Nashtaprayeshu abhadreshu. Nashtaprayeshu abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. How many of you are coming to the center for first time? How many of you are coming here first time? Voice. Okay. How many of you are coming? You have previously came here. How many have previously came here for some sessions? Okay. All of you are in second year? Second. Okay. So we'll begin this Bhagavad Gita sessions. Let's see by mercy of Lord how Krishna allows it. So Gorakhpur is famous for Gita Press all around the world, especially in India. Gita Press Gorakhpur has a very unique contribution of spreading this literature, spiritual literature. How many of you have read Bhagavad Gita previously? Some part. Not read? Read. What is it? What's your good name? Harshit. Harshit. Harshit has read. Good. So, okay. We'll begin with the first verse and then I'll give a little introduction. Bhagavad Gita is a very special literature. So, ये एक ऐसा literature है, you will find that the teachers are reading, the doctors are reading, the engineers are reading, the scientists are reading, philosophers are reading. Every aspect of life and every domain of society, हर कोई भगवद गीता पढ़ रहा है. आप philosophers में जाएंगे, Socrates, scientists में जाएंगे, Einstein, Newton, they have read भगवद गीता. ये Oppenheimer जब एटम बॉम्ब का उसने explosion का, when he saw the light coming out of it, he quoted a shloka, he remembered a shloka of Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi, he writes that, time and again when I get into distress, I turn to a verse of Bhagavad Gita. तो भगवद गीता एक ऐसा लिटरेचर है जिसका यूनिवर्सल अपील है. तो ये बहुत एक स्पेशल लिटरेचर है. तो हर कोई इसको पढ़ता है और हर कैटेगरी के व्यक्ति के लिए इसमें कुछ है ऑफर करने के लिए. दैट इज व्हाई इट इज स्पेशल. Whether a person is a small child, he is going to a school, how he can become a better student. Someone who is married, how he can become a better husband. Someone who is doing job, how he can become a better employee. Someone who is a son, how he can become a better son. कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, भगवद गीता में ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो उसको बेटर ह्यूमन बीइंग, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ व्हाट वी आर,
वो बनने में हमको हेल्प करते हैं। इसीलिए ये जो शास्त्र है ये यूनिवर्सल है। तो भगवत गीता किस में आता है? भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट। तो भगवत गीता इतना स्पेशल है क्योंकि इसका कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों बहुत स्पेशल है। 700 वर्सेस में ऑल प्रिंसिपल्स इन फुल दैट इज देयर इन भगवत गीता। 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं इसमें? 700 श्लोक। तो 700 श्लोकों में भगवान ने धर्म के सारे सिद्धांतों का निरूपण इसमें किया हुआ, इसलिए इतना विशेष है भगवत गीता। तो इसीलिए बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जिसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा कमेंट्री अगर किसी रिलीजियस बुक पे हुई है तो भगवत गीता। हाँ, 5,500 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं भगवत गीता के ऊपर। तो भगवत गीता का जो कंटेंट है वो इतना स्पेशल है, इसलिए आज MBA की यूनिवर्सिटीज में, सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और अभी आप देखेंगे कैसे कैसे बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इसका रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। I'm also we are trying. We are in discussion with VC like that. So with DDU में 26th we have one program. और बहुत all around India it is happening like कि बहुत सारे एक रेगुलर कोर्स इसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है। तो भगवत गीता का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत स्पेशल है। भगवत गीता कहाँ पे बोला गया है? कुरुक्षेत्र में। तो ये जो भगवत गीता का जो डायलॉग है ये युद्ध भूमि में हुआ। तो जनरली लेक्चर के लिए पहली कंडीशन क्या है? आपको शांति चाहिए। अगर युद्ध हो रहा है तो लेक्चर दे सकते हैं? पहला कंडीशन है कि शांत होना चाहिए। शांति नहीं है तो कैसे होगा? इसीलिए भगवत गीता का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत स्पेशल है। युद्ध भूमि में सारे लोग युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं और वहां पे भगवान ने लेक्चर दिए, वो इतना टेक्निकल लेक्चर। एक श्लोक में बहुत डिटेल है। One time, one lecture for all the millenniums, for all the time to come. That is God. One time, one lecture on battlefield for all time to come, for all the people. That is God. Ordinary person cannot be. So Bhagavad Gita is special because it is coming from the most special person, Krishna. That is the first thing. You understand? तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, क्योंकि जो मनुष्य है उसकी जो बुद्धि है वो सीमित है। तो सीमित होने के कारण उसमें बार बार त्रुटियां होती हैं। वो त्रुटियां मतलब मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक को ठीक करता है, फिर दूसरा मिस्टेक होता है, फिर उसको ठीक करता है, फिर दूसरा मिस्टेक होता है। ये बट अपौरुषेय इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। That is why it is very special. So when God gives something, He gives one time perfect. इसलिए भगवत गीता का कोई री-एडिशन नहीं है। ऐसा नहीं कि 700 श्लोक थे पहले, भगवान फिर कुछ भूल गए थे, बाद में याद आया। हमको थोड़ा बाद में याद आता है, तो फिर थोड़ा 15 श्लोक ऐड किया, फिर थोड़ा याद आया कि एक कुछ गलत थे, एक आध श्लोक डिलीट किया। नहीं, ऐसा। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है। ये 700 श्लोक में से 83 श्लोक बोले हैं किसने? अर्जुन ने। 41 श्लोक बोले हैं संजय ने। एक श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। तो बाकी कितने बचे? वो भगवान कृष्ण बोले। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 83 प्लस 41 प्लस 1 कितने बच गए? 575 बोले भगवान। ठीक है, और भगवत गीता में कितने चैप्टर है? 18 चैप्टर्स। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर है। तो भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में बहुत कुछ स्पेशल चीजें दी हुई हैं। एक एक श्लोक में बहुत कुछ है।
आज पहला श्लोक थोड़ा डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे हम लोग, तो आप लोग बोलिए मेरे पीछे। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। इसको रिपीट करेगा। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। Read the translation. Someone will read the translation. Dhritarashtra, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? तो भगवत गीता कब सुनाई गई है? भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है कितने दिन हुआ है? 18 दिन हुआ है। 18 दिन में से पहले दिन का एक मेन पार्ट है भगवत गीता। लेकिन संजय कहाँ है? युद्ध भूमि में थे, तो युद्ध भूमि में संजय युद्ध देख रहे हैं। तो सबसे पहले कमांडर थे कौरवों के कौन? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह 10 दिन कमांडर इन चीफ रहे। तो 10वें दिन जब भीष्म पितामह गिरते हैं तो उनके सम्मान में युद्ध को पहले ही खत्म कर दिया, रोक दिया जाता है। जैसे भीष्म वॉज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। तो जिस दिन भीष्म पितामह गिरते हैं तो उस दिन युद्ध को रोक दिया जाता है। तो संजय वहां से वापस आते हैं 10वें दिन के बाद, और फिर वो धृतराष्ट्र को बता रहे युद्ध में क्या क्या हुआ। तो वहां से शुरू होता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो जो धर्म क्षेत्र है, धर्म शब्द से भगवत गीता की शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो गीता का मैसेज है वो यूनिवर्सल है। कई लोग सोचते हैं वो गीता में, कुछ लोगों ने कमेंट्री में लिखा है गीता में भगवान ने बोला अर्जुन को लड़ाई करो, लड़ाई करवा रही है गीता। तो हाँ, तो गीता का मैसेज, अर्जुन का यह क्वेश्चन नहीं है कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। अगर यही क्वेश्चन होता तो 2 श्लोक में खत्म हो जाती। अर्जुन बोलते करना है कि नहीं करना, भगवान बोलते करना है, ओके, गीता शॉर्ट हो जाता काफी। हाँ, लेकिन this was not Arjuna's question. If you see Bhagavad Gita, Arjuna's question is what is dharma? क्योंकि साम्राज्य के लिए तो दुर्योधन लड़ रहा है, कौरव लड़ रहे हैं। अर्जुन और पांडव साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रहे, किसके लिए लड़ रहे हैं? धर्म के लिए लड़ रहे हैं। The main focus of Bhagavad Gita is what is dharma, and this is one of the most important question for every living entity. कि what is dharma? मेरा धर्म क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति को जानना। तो वही अर्जुन जानना चाहते हैं। तो 2.7 जो की वर्स है भगवद गीता का, जो उसका एसेंशियल मैसेज बताता है, कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्मतं मूढचेता यश्रेयं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। So Arjuna is telling कार्पण्य दोषा अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम means I am asking you धर्म सम्मूढ़ चेत, I am confused about dharma.
आई एम कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज माई धर्म, मेरा धर्म क्या है ये जानना व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए गीता धर्म से, इस शब्द से शुरू हो रही। तो जो धर्म क्षेत्र है जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, समवेता वहां पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? युद्ध सभा, युद्ध करने के लिए जो तत्पर है। हाँ? कौन कौन? माम का धृतराष्ट्र बोल रहा है मेरे पुत्र, और पांडवश्चैव पांडु के पुत्र, किम अकुर्वत संजय उन्होंने क्या किया? तो धृतराष्ट्र ने पूरी गीता में एक ही श्लोक बोला है, ये श्लोक बोला। तो धृतराष्ट्र पूछता है कि जो धर्म क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र मतलब प्लेस, तो प्लेस का अपना एक इफेक्ट रहता है। आप कहीं पे भी देखेंगे प्लेस का क्या रहता है, अपना एक इफेक्ट रहता है। जैसी प्लेस रहती है, लाइब्रेरी में जाएंगे तो पढ़ना आसान है, करेक्ट। मूवी थिएटर में पढ़ना मुश्किल है, मूवी देख सकते हैं। इसीलिए हर चीज के लिए अलग अलग प्लेस बनाई गई है। घर भी रहता है ना, ड्राइंग रूम अलग रहता है, स्टडी रूम अलग है, टॉयलेट अलग है, हर का अलग अलग रोल है। और वो क्षेत्र का प्रभाव भी रहता है, वो क्षेत्र का एक प्रभाव रहता है। बियर बार में आप जाएंगे, वहां पे हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं, मजा नहीं आएगा, क्षेत्र अलग है वो। इसी तरह हर क्षेत्र का एक प्रभाव रहता है। स्टेशन पे जाएंगे तो उसका एक वाइब्रेशन है, अलग वाइब्रेशन। सब्जी मंडी में घुसेंगे, नॉर्मल आदमी टेंशन में आ जाएगा। इसी तरह किसी शांत पार्क में जाएंगे, अपने आप मन पीसफुल हो जाएगा। इसी तरह व्यक्ति मंदिर में आता है, अपने आप भगवान की प्रेजेंस को अनुभव कर पाता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। क्योंकि युद्ध क्या है, पहले धर्म के लिए होता था, जीतने के लिए नहीं होता था, अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो युद्ध का मेन पर्पस है कि धर्म स्टैब्लिश होना चाहिए। तो ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहाँ बहुत ऋषियों ने तपस्या की है। तो जो क्षेत्र रहता है उसमें जो क्रियाएं की जाती हैं उससे उसकी वाइब्रेशंस बनती है। इसलिए आप देखेंगे, अगर आप जाते हैं, जैसे यू गो टू अ टेम्पल, ऑटोमेटिकली यू विल फील अ सर्टेन काइंड ऑफ पीस। क्यों? क्योंकि वहां पे उस तरह की क्रिया हो रही है, उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। तो कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे ऋषियों ने तपस्या की, तो तपस्या से उसमें एक वाइब्रेशन है धर्म की। वहां तो ये साइंटिफिक है बहुत, ये वाइब्रेशन। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं, मथुरा, वृंदावन, जितने भी तीर्थ क्षेत्र है वहाँ ऋषियों की समाधि बनी रहती है। और जहाँ वो ऋषियों ने तपस्या की है, भजन किया है, वो जगह पे लोग जाते हैं दर्शन करने। क्यों? क्योंकि उस पर जो क्रिया की गई है वहाँ की वाइब्रेशंस रहती है। सो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो जो प्लेस का है अपना एक इफेक्ट रहता है। तो धृतराष्ट्र को एक डर है, ये प्लेस का इफेक्ट है, ये तो धर्म क्षेत्र है। और 100% श्योर है अपने बच्चों के बारे में। दुर्योधन एंड कंपनी क्या है, ये तो विलन ही है सबके सब। दुर्योधन, दुशासन, नाम भी ऐसा है। शास्त्रों में पहले वैसे नाम बहुत मीनिंगफुल रखते थे, आजकल तो पिंटू चिंटू कुछ भी रख देते हैं, लेकिन पहले धृतराष्ट्र, धृत means attach, Rashtra means Rashtra, one who holds on to the kingdom, one who is attached to the kingdom, that is धृतराष्ट्र। ऐसे दुर्योधन, दुशासन, वैसे इनकी डबल मीनिंग है, एक मीनिंग नहीं, दो मीनिंग है। संस्कृत में वैसे भी हर शब्द के 11 उसके अर्थ निकलते हैं। तो दुर्योधन, दुशासन नाम से ही लग रहा है, जैसे हिंदी मूवी में रहते थे ना पीटर, गब्बर, वो नाम से ही वो लग रहा है, तो कोई जेंटल आदमी नहीं रहेगा, कुछ तो एक गड़बड़ी करने वाला है ये। तो इसीलिए यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है उसको टेंशन हो रही है, ये तो धर्म क्षेत्र है, तो ये हमारे लिए होम ग्राउंड नहीं है। जैसे मोहाली में क्रिकेट का मैच हो रहा है अगर पाकिस्तान में, तो नेचुरली होम ग्राउंड का एक सपोर्ट रहता है लोगों को,
ये तो धर्म का क्षेत्र है। और मेरे जो बच्चे हैं इस सब्जेक्ट में तो सारे फेल हैं, उन सबकी बैक लगी हुई है, दुर्योधन वगैरह। जो पांडव भी हैं जो धर्म के साथ हैं। ये तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, वहाँ पे लोग ये इकट्ठे हुए हैं। जब भी लोग इकट्ठे होते हैं कोई उद्देश्य होता है। गैदरिंग्स आपने देखी है ना, इसलिए अलग अलग मंडल बनते हैं। ये मंडल अलग, मित्र मंडल, हिंदू मंडल, वो मंडल। बिजनेसमैन के अलग ग्रुप्स रहते हैं, तो बिजनेसमैन इकट्ठे होंगे, बिजनेस का चर्चा करेंगे। पॉलिटिशियंस इकट्ठे होंगे, पॉलिटिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं युद्ध सभा, युद्ध के लिए। ये एक्चुअली ये क्लाइमैक्स है आज तक के इतिहास में। सबसे बड़ा कोई लिटरेचर है तो महाभारत। इंग्लिश वर्ल्ड में शेक्सपियर, इलियाड एंड ओडेसी इंग्लिश वर्ल्ड के सबसे बड़े लिटरेचर्स हैं। उससे कई गुना बड़ा है महाभारत। 1,00,000 वर्सेस हैं इसमें, 1,00,000 श्लोक। महाभारत मेनली कलयुग के लोगों के लिए लिखा गया है। तो व्यासदेव ने पहले 4 वेद लिखे, तो लेकिन उसको लगा सब लोग तो समझ नहीं पाएंगे। तो समझना आसान नहीं है ना संस्कृत को, तो मुश्किल होगा समझना। और उसमें सीधे तत्व लिखा गया है, तत्व। हाँ, तो तत्व को समझना इतना आसान नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जो उपनिषद में दिया हुआ है। तो व्यासदेव ने फिर सोचा महाभारत। तो महाभारत क्या है, मूवी की तरह है। बोले ये अच्छा लगता है लोगों को। लोग देखते हैं शकुनी आ रहा है, शकुनी मामा, दुर्योधन, दुशासन, ये तो अच्छा लग रहा है, इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, इंटरेस्ट आ जाता है लोगों को। हाँ, वो द्रौपदी है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, अच्छा इसमें इस तरह का भी सीन है, ये भी अच्छा लग रहा है उनको। ऐसी मूवी लोग देखते हैं। ये हीरो है, हीरोइन है, फाइटिंग है। तो जो महाभारत है उसके एकदम सेंटर पे है ये भगवत गीता, एकदम सेंटर पे महाभारत के व्यासदेव ने डाला। क्योंकि क्या है, डायरेक्ट गीता डाल देंगे आदमी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि कलयुग में जो बुद्धि का लेवल है वो काफी कम है। पहले के लोग रहते थे, उनको कभी नोटबुक लगती नहीं थी। ये कभी नोटबुक कहीं आप देखेंगे नहीं कि अर्जुन को भगवान गीता बुला रहे हैं, अर्जुन श्लोक लिख रहे हैं, नहीं। पहले केवल श्रवण मात्र से वो स्मृति इतनी ज्यादा रहती थी, व्यक्ति स्थिर, हार्ड डिस्क अंदर था, बाहर नहीं। अंदर का ऐसा था, फिक्स रहता था उसमें डाटा। तो हर जगह केवल एक बार, कोई रिप्ले नहीं, कोई रीटेक नहीं, एक बार। ऐसी बुद्धि थी लोगों की, ऐसी स्मृति। तो कलयुग में व्यासदेव ने देखा कि इतना बुद्धि नहीं रहेगा, और लोगों का जो रुचि है वो भी इतना ज्यादा नहीं रहेगा। लोगों की इच्छा है, लोगों का इंटरेस्ट इसी में ज्यादा रहेगा, भाई पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, स्कैंडल कहाँ हुए, इसी तरह खबरों में रुचि रहेगी। तो महाभारत में वही सब डाला हुआ है। लेकिन उसके एकदम क्लाइमेक्स में ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है जो भगवत गीता। इसीलिए भगवत गीता को वेदों का सार बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी को वेद समझना है, वेद पढ़ना है, जस्ट काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। वेद जो शब्द है, वेद का मतलब है बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी हम पढ़ रहे हैं ये वेदों से ही आ रहा है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, फाइनली इसका रूट वेदों में है। जो हिटलर था वो धनुर्वेद को, अस्त्र शास्त्र को जानना चाहता था। आयुर्वेद है, वेदों की एक ब्रांच है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वेदास। उसके बाद 108 उपनिषद है, वो भी वेदों का पार्ट है। संहिताज है, वो भी वेदों का पार्ट है। तो इतना वास्ट है वेद। और आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये सब ऑक्सिलरी ब्रांचेस है वेद का। तो इसका डिटेल सुन के ही हो सकता है हमको हार्ट अटैक आ जाए, इतना ज्यादा वास्ट है। मेडिकल की जैसे बुक्स रहती है ना, ग्रेज एनाटॉमी, इतनी मोटी मोटी उपनिषद रहती है। हाँ, तो उसको देख के आदमी उसकी पूजा कर सकता है, पढ़ेगा कैसे वो। इसीलिए वेदों का एसेंस डाल दिया। महाभारत को पंचम वेद बोलते हैं, भगवत गीता क्या है, वेदों का एसेंस। तो ऐसे क्लाइमेक्स पर डाला है कि लोगों का रुचि उत्पन्न हो जाए, क्योंकि लोग देख रहे हैं झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, इतना सारा क्लाइमेक्स चल रहा है, पांडवों को निकाल दिया, मारने की कोशिश चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है।
और ये सब के बीच में एकदम सब अब क्लाइमेक्स आ गया कि दुर्योधन एक जो सुई की नोक में जितनी भूमि आती है उतना भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं। भगवान ने ट्राई कर लिया, सबने ट्राई कर लिया, पूरा जो संसार है 2 भागों में बट गया। हाँ, पूरे संसार के जितने राजा हैं, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, अब सब इंटरेस्टेड है क्या होगा। क्लाइमेक्स बन रहा है ना मूवी में देखते हैं ना, जो क्लाइमेक्स बनता है वो विलन है, हीरो है, झगड़ा चल रहा है, हाँ, और हीरो एकदम पहाड़ से कहीं लटक रहा है, विलन आ रहा है अपने जूते से उसको, पहले की मूवी में होता था। आई एम नॉट मच अपडेटेड अबाउट द रिसेंट वंस। तो व्यक्ति इंटरेस्ट जग जाता है लोगों का कि हाँ अब क्या होने वाला है। उतने में वहां पे ये भगवत गीता शुरू होती है। समवेता युद्ध सवा, सब लोग युद्ध करने के लिए रेडी है। तो भगवान ने ये कॉन्टेक्स्ट क्यों चुना भगवत गीता को पढ़ाने के लिए? कोई बता सकता है ये कॉन्टेक्स्ट ही क्यों चुना भगवान ने भगवत गीता को पढ़ाने के लिए? युद्ध के बीच में इतना स्पेशल, मतलब एकदम किसी ने कभी सोचा नहीं होगा युद्ध के बीच में ऐसा लेक्चर होगा। भगवान ने युद्ध भूमि को क्यों चुना? कोई गेस? लेक्चर देना था तो कहीं शांति से बैठ के दे सकते थे, पहले तो वैसे भी बहुत शांति थी। तो युद्ध भूमि में सारे लोग रेडी हैं, राइफल लेके रेडी है, वो एकदम युद्ध के लिए एकदम रेडी है, एक दूसरे के सामने। इसको क्यों चुना? तुरंत सुन के तुरंत अप्लाई कर देंगे, तुरंत सुन के तुरंत अप्लाई कर देंगे। हाँ, पहले अप्लाई नहीं होता था। एक बहुत मेजर रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कि अर्जुन उस समय विचलित थे कि कैसे वो युद्ध कर सकते हैं अपनों के लिए, अपनों के खिलाफ। अगर युद्ध या रण सिर्फ इसलिए करना है कि हमें राज्य चाहिए तो फिर अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये था कि वो धर्म के साथ थे और धर्म की पुनर्स्थापना करनी थी, तो फिर भगवान ने समझाया कि हाँ, ये जो युद्ध है ये सिर्फ राज्य के लिए नहीं है, ये धर्म के लिए है, और कलयुग का जो कि आरंभ होने वाला है तो धर्म की स्थापना फिर से जरूर। ओके, आंसर इज गुड। आई एम आस्किंग बट तभी क्यों बोला? एक मतलब इसमें कारण ऐसा हो सकता है, मनुष्य जब मृत्यु के बिल्कुल नजदीक रहता है तो मतलब विध्वंस से सृजन के बीच का प्रस्फुटन होता है। तो मनुष्य जब मृत्यु के बिल्कुल नजदीक रहता है तो उसके अंदर जो माया है, माया का मोह बहुत ज्यादा रहता है। तो उस समय शायद प्रभु ने अपने मतलब ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया और एक मार्ग दिखाने का। आप लोग भी एक कमेंट्री लिख सकते हैं गीता में लेकिन ये रीजन नहीं है, ये भी आपने अच्छा बताया है। वेरी गुड, वेरी थॉटफुल। Krishna spoke Bhagavad Gita on the battlefield so that in future no one can say I don't have time. No one should say I don't have time. Arjuna took out time on the battlefield. Arjuna took out time on the battlefield. There can be no emergency more than the battlefield where people are willing to give up their lives. लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है, वहां भगवान ने गीता दी। आगे कोई बोले ना, मेरे पास समय नहीं, पहला रीजन। दूसरा, जो भौतिक संसार है इसमें युद्ध डेली है, ग्रॉस वे में नहीं होगा बट डेली हमको युद्ध करना पड़ता है अपने अनर्थों से, अपने चैलेंजेस से। डेली ये बैटलफील्ड है। हाँ, और गीता की टीचिंग्स हमको डे टू डे लाइफ में हेल्प करती है, इसलिए भगवान ने बैटलफील्ड को चुना वो युद्ध को देने के लिए। ऐसा कॉन्टेक्स्ट कि आने वाले समय तक बैटलफील्ड में रोक के अगर कुछ बोला जा रहा है तो व्यक्ति समझेगा ये ज्ञान क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और इमरजेंसी, स्पिरिचुअल लाइफ में इज 2 थिंग्स। फर्स्ट, इट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग एंड सेकंड, इट्स अ इमरजेंसी। ये इमरजेंसी, इसीलिए भगवान ने बैटलफील्ड में ये ज्ञान दिया। माम का पांडवश्चैव, धृतराष्ट्र बोलता है मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। वास्तव में पांडु के मरने के बाद वो धृतराष्ट्र राजा है, तो राजा के लिए सब लोग समान होने चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र का यही प्रॉब्लम था, वो शुरू से मेरे और दूसरों में भेद करता था। तो दुर्योधन से क्या बहुत आसक्त था, इसको बोलते हैं मटेरियल अटैचमेंट।
अटैचमेंट मीन्स इनएबिलिटी टू गिव अप नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट। उसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति मतलब जो आ सकती है वो जा नहीं सकती। आसक्ति शब्द सुना है ना आपने? आसक्ति। तो धृतराष्ट्र आसक्त हो गया। अटैचमेंट मीन्स इनएबिलिटी टू गिव अप नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट। व्यक्ति जब अटैच हो जाता है ना कहीं पे, तो वो देखता नहीं इसको क्या क्या इसका कॉस्ट होगा, उसको समझ में नहीं आता। और एक बार अटैच हो जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो अटैचमेंट उसका गलत जगह हो गया तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही अटैचमेंट सही जगह हो गया तो लाइफ का उद्धार हो जाता है। ये प्रिंसिपल है। प्रसंगम अजरम पाशम कवयो आत्मनो विदु, इसलिए बोला गया है प्रसंगम अजरम पाशम। इस संसार में जो आसक्ति है वो व्यक्ति को पकड़ लेती है। आप देखिए, इसीलिए स्पेशली जो यूथ है, इस यंग एज में हमको बहुत कॉशियस रहना चाहिए कि गलत जगह कोई अटैचमेंट ना हो जाए। हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो क्षेत्र, हम लोग जिस क्षेत्र में, हॉस्टल का एक वाइब्रेशन रहता है ना, जैसे धर्म क्षेत्र है वैसे ट्रिपल M क्षेत्र है। तो आपको देखना है कि वो क्षेत्र का वाइब्रेशन आपको अनफेवरेबली अफेक्ट करेगा और कहीं गलत चीज में आसक्ति ना हो जाए। क्योंकि आसक्ति का कॉस्ट कितना है यंग एज में। यंग एज इट्स लाइक अ क्रॉस जंक्शन, वन रॉन्ग डिसीजन पर्सन लेमेंट्स फॉर द होल लाइफ। एक बार गलत चीज में व्यक्ति किसी में पड़ जाता है, कोई ड्रग्स में, कोई किसी गलत चीज में, तो उसको बहुत हैवी प्राइस रहता है। धृतराष्ट्र की आसक्ति का प्राइस क्या था? 64 करोड़ लोगों की मृत्यु। कितने लोगों की मृत्यु? 64 करोड़। तो ये अटैचमेंट है। माम का पांडवश्य, मटेरियल अटैचमेंट। मटेरियल अटैचमेंट हो जाता है, उसका कॉस्ट बहुत हैवी रहता है। तो धृतराष्ट्र का पैसिव विलन है। एक्टिव विलन है दुर्योधन, लेकिन पैसिव विलन कौन है? धृतराष्ट्र। क्योंकि वो अटैच है तो वो करेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस संसार में जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट के कारण क्या होता है, हम किसी की एक्चुअल में हेल्प नहीं कर पाते। धृतराष्ट्र को पता था क्या सही है, लेकिन उस पर डिसीजन नहीं ले पाए। क्यों? उसको लगा कि दुर्योधन डिस्प्लीज हो जाए। समझ गए आप लोग? जैसे कोई डॉक्टर है, आपको उस बच्चे का ट्रीटमेंट करना है, तो इंजेक्शन लगाना है, बच्चा रो रहा है, बोल रहा है अरे कैसा है, जालिम डॉक्टर है, मुझे इंजेक्शन लगा रहा है, बच्चा बोल रहा है और रो रहा है बच्चा। हाँ, तो अगर वो बच्चे से आसक्त हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। So attachment and love are two different things. Love means thinking about the long-term welfare. Attachment means it is selfish. व्यक्ति कंसर्न रहता है मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए। व्यक्ति किसके बारे में कंसर्न रहता है? मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए। और अटैचमेंट का कॉस्ट क्या होता है? 64 करोड़ चले गए यहाँ पे धृतराष्ट्र के उसमें। ऐसे ही एक एक गलत चीज आप लोग अपने लाइफ में सोच सकते हैं। किसी भी गलत चीज जिससे अटैच रहते हैं तो उसका क्या प्राइस रहता है। और धृतराष्ट्र पूछ रहा है किम अकुर्वत संजय, लोग क्या किया उन्होंने? तो ये तो प्रश्न ही गलत है एक तरीके से, क्योंकि पहली लाइन में आया क्या? युद्ध सभा। युद्ध सभा का मतलब क्या है? हाँ, युद्ध सभा का मतलब क्या है? युद्ध करने के लिए तत्पर। युद्ध सभा का मतलब क्या है? युद्ध करने के लिए तत्पर है। और तो पहली लाइन में धृतराष्ट्र खुद ही बोल रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने के लिए तत्पर थे, और दूसरी लाइन में पूछ रहा है उन्होंने क्या किया। इसका क्या मतलब? हाँ, 4 लोग गए, वो बियर बार में गए, उन्होंने शराब ऑर्डर की, अब कोई फोन करके दूसरा व्यक्ति पूछा उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ड्रिंक किया और क्या किया? करेक्ट ना? तो पहली लाइन में बोल ही रहा है वो युद्ध करने के लिए तत्पर थे, वो लोग इकट्ठे हुए। तो ऐसा क्यों पूछ रहा है धृतराष्ट्र कि उन्होंने क्या किया? हाँ? तो ये पहला श्लोक है। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिससे कि आप लोग गीता में बहुत सारा साइंस है जो आगे आएगा।
जो समझने के लिए, क्योंकि भगवान की ये जो भगवत गीता है, भगवान कोई भी शब्द यूज करते हैं, आगे भी जो भी आएगा, एक एक चीज का कुछ मीनिंग है, इसके लिए उसका उपयोग है। कोई भी चीज क्या मीनिंगलेस नहीं है। तो वैदिक संस्कृति में एवरीथिंग इज मीनिंग। घर का भी आप देखेंगे, घर का कुछ नाम रहता है ना, सुरभि कुंज, वृंदा कुंज, मधुबन, घर के भी नाम रहते हैं, स्पिरिचुअल नाम रहते हैं, कृष्ण निकेतन। मॉडर्न सोसाइटी में फ्लैट नंबर, ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृति में हर चीज मीनिंगफुल रहती है। कोई भी आप एरिया देखेंगे, कुछ देखेंगे, सबका मीनिंग है। आज की डेट में बॉम्बे में जाओ, अंधेरी ये नाम है, तो उसमें क्या होगा, ना स्टेशन का नाम है अंधेरी, अंधेरी भयाकुला, गए कोई बॉम्बे में रहा है, हाँ? मातुंगा, वो स्टेशन का नाम सुन के नए आदमी को डर लग जाएगा। लेकिन वैदिक कल्चर मीन्स मीनिंगफुल, एवरीथिंग इज सपोज्ड टू बी मीनिंगफुल, इसके पीछे कुछ सार है। तो धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहे हैं, वो तो युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये धर्म भूमि है। तो जब धर्म क्षेत्र में माइंड कभी कभी चेंज हो जाता है, तो धृतराष्ट्र को लग रहा है मेरे पुत्रों का माइंड ना चेंज हो जाए। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इसका देखिए परपोर्ट पढ़ते हैं, थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। तो एक एक लाइन आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, स्लोली स्लोली पढ़िएगा। यस, Bhagavad Gita is a widely read theistic science summarized in a Gita Mahamatya, महात्म्य। यस, glorification of Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretation. The example of clear understanding is there in Bhagavad Gita itself. In the way of teaching is understood by Arjuna, who has heard the Gita directly from the Lord. yes. So first thing which is told here is, भगवत गीता क्या है, ये बहुत व्यापक रूप से बहुत लोग इसको पढ़ते हैं। तो भगवत गीता, गीता महात्म्य इसके बारे में दिया हुआ है। व्यक्ति को इसको समझने का प्रयास करना चाहिए भगवान के मन से। गीता अगर किसी को अंडरस्टैंड करना है तो पहला उसको एक चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान, थियोरेटिकली एटलीस्ट। जैसे मैथ्स में होता है ना, लेट्स से x इक्वल्स टू, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और साइंस में भी एक्सियोम्स रहती हैं, देखा ना। एक्सियोम का मतलब क्या है, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। जैसे आई है ना, इमेजिनरी नंबर, वो नाम ही इमेजिनरी है, लेकिन उसके ऊपर एनालिटिकल फंक्शन सब पूरा मैथ्स में आ गया। तो इसी तरह अगर गीता को समझना है तो पहले उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। गीता इज स्पेशल बिकॉज द स्पीकर इज स्पेशल, एंड स्पीकर इज नॉट जस्ट स्पेशल, ही इज गॉड। तो गीता क्योंकि भगवान से आ रही है इसलिए वो इतनी विशेष है। तो ये पहला चीज है। तो भक्त से समझने के लिए क्यों बोला है, भक्त मतलब उसको एक विश्वास है। दूसरा बताया है कि भगवत गीता की टीचिंग इन अ वे अंडरस्टूड बाय अर्जुन, जैसे अर्जुन ने की वैसे ही व्यक्ति को समझ। तो अर्जुन ने किया है, कैसे समझेगा। तो शुरू में गीता के जैसे आपने बताया, अर्जुन विचलित था, कंफ्यूज था, लेकिन जब अर्जुन ने भगवत गीता सुनी तो क्या बोलता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहा, कंफ्यूजन चला गया। तो प्रेजेंट में कंडीशन क्या है लिविंग एंटिटी की, कि वो कंफ्यूज है, हमको पता नहीं ना क्या करना है हमको। तो भूतकाल में जो हुआ है, भूतकाल के लिए लमेंट करता रहता है, अरे ऐसा कर देते तो अच्छा रहता, ऐसा कर देते तो अच्छा रहता। और भविष्य के लिए भय, भविष्य में क्या होगा, प्लेसमेंट होगी तो नहीं होगी, प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, कहाँ जॉब लगेगी, टेंशन है उसको भविष्य के लिए, क्या करूँगा मैं। और वर्तमान में कंफ्यूज है। तो नष्टो मोहा स्मृति, अर्जुन बोलते हैं गीता सुनने के बाद कंफ्यूजन चला गया मेरा, हाँ मेमोरी वापस आ गई, और करिष्ये वचनम तवा, जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो ये गीता पढ़ने का रिजल्ट है। जब हम गीता पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म। तो यही बताया, वी शुड अंडरस्टैंड भगवत गीता द वे अर्जुन,
understood it. Yes. Read it. Next. Someone would like to read? Yeah. If someone is fortunate enough to Yeah. understand Bhagavad Gita in that line of this Disciple succession. without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. Yeah. So, if one is fortunate enough, अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति है तो वो इस तरह से भगवत गीता पढ़ पाएगा। तो देखिए क्या है कि हर चीज का एक साइंस होता है। आप साइंस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, और साइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो अगर इस तरह से कोई भगवत गीता पढ़ेगा, सिस्टमैटिकली पढ़ेगा, लाइफ विल नॉट बी द सेम, लाइफ विल चेंज। लेकिन शास्त्रार्थ को भी अगर सिस्टम से नहीं पढ़ेगा, अच्छे से नहीं पढ़ेगा, तो उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। आज की डेट में यूट्यूब है, गूगल है, बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, माइंड फोकस्ड नहीं है, बिकॉज समथिंग इज मिसिंग। गेटिंग द पॉइंट? समथिंग जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन अलग अलग साइंसेस है। तो फिजिक्स में किसी छोटे चीज का लेंथ मेजर करना है फिजिक्स लैब में, तो क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। देखा आपने? वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं किसी छोटी चीज का लेंथ यूज करना है। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर चेक करना है एसिड बेस, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, लिटमस पेपर यूज करते हैं। और बायोलॉजी में अगर कोई स्पेसिमेन देखना है, जो छोटा स्पेसिमेन, किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। ये साइंस है, समझ गए? ये साइंस है। अभी अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है कि बेसिक सोल्यूशन है, वर्नियर कैलिपर डुबा के देखते हैं, तो कितने समय तक डुबाते रहेगा उसको पता नहीं चलेगा। हाँ, बोलिएगा तो क्या बेकार इंस्ट्रूमेंट है ये, मैं डुबा रहा हूँ, काम कर नहीं रहा है, और लेंथ मेजर कर रहा है वो लिटमस पेपर से, काम होगा? To understand, there is a science behind it. So if we apply the science and systematically study, then the result will come. डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो आयुर्वेद में जाते हैं ना, तो बताता है क्या करना है, कौन सी दवाई लेनी है, किसमें कितना पानी मिलाना है। देखा है आपने? इसको हनी के साथ खाना है, इस दवाई को दिन में 3 बार खाना है, आप 3 दिन में 1 बार खा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट अलग होगा। तो और भगवत गीता के बारे में बताया जा रहा है, भगवत गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है कि भगवान के मुख से निकल रहा है, तो इसमें सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस दिया हुआ है। तो इट इज रिटन, यू विल फाइंड व्हाट इज देयर इन द अदर स्क्रिप्चर्स एंड इवन मोर इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। दैट यस, रीड इट। The topics discussed by the Dhritarashtra and Sanjay as described in the Mahabharata from the basic principles for this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. तो कुरुक्षेत्र में ग्रेट फिलॉसफी, सो ग्रेट फिलॉसफी, स्पेशल प्लेस, स्पेशल सर्कमस्टेंस, एवरीथिंग स्पेशल अबाउट भगवद गीता। स्पीकर इज स्पेशल, लॉर्ड कृष्ण। स्टूडेंट इज स्पेशल, द टॉप आर्चर, नंबर 1 आर्चर। द प्लेस इज स्पेशल, कुरुक्षेत्र। द कंटेंट इज स्पेशल, all the principles of religion are spoken, and the context is also special. Battlefield. That's how Krishna spoke it. So, yeah, read it. The word Dharma Kshetra, a place where religious
religious rituals are performed. rituals are performed is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the supreme personality of the Godhead was present on the side of Arjuna. Dhritarashtra, the father of Kurush, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. In his doubt, he inquired from his secretary Sanjay, what did they do? He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu was assembled in that field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. Still, his inquiry insignificant. He did not want a compromise between cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield, because the battlefield was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizens of heaven. Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of battlefield. He knew very well that this word would influence Arjun and the sons of Pandu favorably, because by nature they were all virtuous. Sanjay was a student of Vyas, and therefore by the mercy of Vyas, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so Dhritarashtra asked him about the situation of battlefield. Yeah, so in this paragraph, धर्म क्षेत्र word is explained. तो कोई भी प्रभुपाद जी ने जो भी परपोर्ट दिया है, तो परपोर्ट में क्या है, एक्सप्लेन किया है कुछ कुछ. तो जो श्लोकों में शब्द रहते हैं, उसको परपोर्ट में थोड़ा एक्सप्लेनेशन रहता है. तो धर्म क्षेत्र जो वर्ड्स है, धर्म क्षेत्र, माम का पांडवश्चैव, ये चीजों को इसमें एक्सप्लेन किया है. तो धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहा है कि उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र को बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि धर्म क्षेत्र है और पांडवों की पांडव धर्म का अनुशीलन करने वाले, और युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो धर्मराज के ही अंश हैं, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, और भगवान कृष्ण जो है वो धर्म को धारण करने वाले, धर्म के पिता. तो अभी क्या चांस है कि कौरव जीतेंगे? तो ये धृतराष्ट्र सोच रहा है कि कैसे मेरे पुत्र जीतेंगे वहां पे. उसको कंफ्यूजन है कि पहला तो उसको, और वो अटैच है, उसको दोनों चीजें उसका जो अटैच पर्सन होता है ना, वो एक ही आउटकम चाहता है. धृतराष्ट्र को लग रहा है कि दो चीजें वो नहीं चाहता. पहला, मेरे संग कॉम्प्रोमाइज ना कर ले, मतलब मति ठीक ना हो जाए. यहाँ पे तो दुर्योधन ने बोला तो सुई के बराबर भी नहीं दूंगा. अब धर्म क्षेत्र में उसका थोड़ा माइंड ब्रेन वॉश ना हो जाए, पता चला नेगोशिएशन करके आ गए. तो वो भी धृतराष्ट्र नहीं चाहता. और युद्ध होगा तो भी धर्म क्षेत्र है, तो मेरे बच्चों को फेवरेबली सपोर्ट नहीं करेगा, हार ना जाए. वो चाहता है युद्ध भी हो, मेरे बच्चे जीतेंगे, जो कि असंभव है. So that is what is being explained in this paragraph, like that. Actually, we have to understand, whenever we follow dharma, in the end we will be victorious. So in the modern times, आधुनिक समय में लोगों का ऐसा विचारधारा है, हमको लगता है कि शॉर्टकट मार लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा. पर शॉर्टकट इज ऑलवेज अ लॉन्गर कट इन लाइफ. अंत में धर्म की ही विजय होती है, और अंत बहुत महत्वपूर्ण है. कॉलेज में व्यक्ति साल भर पढ़ा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल हो गए, तो क्या मतलब है? 3-4 साल इधर उधर घूम रहा था, लेकिन कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ अंत में, तो कोई मतलब है? अंत बहुत इंपॉर्टेंट है. बोलते हैं ना, फाइनल मैच जब होता है, वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच है, कुछ में जो फाइनल है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फाइनल में विजय उसी की होगी जो धर्म का अनुशीलन करेगा. ये शास्त्र का सिद्धांत है, जो धर्म का अनुशीलन करेगा. अगर एक देखेंगे महाभारत को एक मूवी की तरह देखेंगे, देखिए क्या है, पूरे टाइम तो दुर्योधन ही एंजॉय कर रहा है, आधे टाइम. करेक्ट ना? पांडव तो बेचारे गांव जंगल में घूम रहे हैं, वो सब कर रहे हैं. बट कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन रखता है? दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन नाम रखते हैं लोग, आज भी नाम रखते हैं, अर्जुन, नकुल.
क्यों? क्योंकि धर्म की एंड में विजय होती है और वो महत्वपूर्ण है. दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड इन लाइफ वी शुड डू व्हाट इज राइट. दैट शुड बी द कंसर्न, नॉट व्हाट इज इजी. वेदर इट्स इजी और डिफिकल्ट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेदर इज अकॉर्डिंग टू धर्म और नॉट अकॉर्डिंग टू धर्म. तो जो धर्म है उसकी विजय होती है. तो धर्म क्षेत्र. अब इसके एंड में लास्ट पैराग्राफ में क्षेत्र जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा. Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family, but Dhritarashtra's mind is disclosed here. He deliberately claimed only his sons as Kuru, separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra and his relationship with his nephews, the sons of Pandu. तो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? कौन सा शब्द एक्सप्लेन कर रहे हैं आप? भामका पांडवश्य. समझे आप लोग? मी एंड माइन की मेंटालिटी. तो पहले से सेपरेट करने की धृतराष्ट्र की मेंटालिटी है, मी एंड माइन. तो द मोर वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ द मोर यूनिटी कम्स. धर्म का काम है, धर्म मतलब केंद्र में भगवान आ जाते हैं. तो वैदिक संस्कृति में क्या है? केंद्र में भगवान है. तो जब भगवान केंद्र में रहते हैं तो अपने आप सब जुड़ जाते हैं. जो केंद्र में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. केंद्र में जो है, जैसे एक पत्थर मारते हैं आप, ठीक है, तो पत्थर फेंकते हैं जब नदी पे, हाँ, दूसरा व्यक्ति दूसरा पत्थर मारता है, तीसरा व्यक्ति तीसरा पत्थर मारता है, तो उससे क्या निकलते हैं? रिपल्स निकलते हैं ना, रिपल्स. तो रिपल्स एक दूसरे को एक समय के बाद क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं. देखा, चौथा व्यक्ति चौथा पत्थर मार रहा है, वो एक और रिपल्स निकलेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे. तो कैसे पत्थर मारा जाए कि रिपल्स इंटरसेक्ट ना करें? क्या तरीका है? हाँ, कॉमन सेंटर. सेंटर क्या होना चाहिए? तो कॉमन सेंटर होगा तो क्या रिपल्स निकलेंगे, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. दूसरा, उसकी डेप्थ बढ़ेगी. तो जब केंद्र में भगवान आते हैं, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति क्या है? केंद्र में भगवान रहते हैं. तो जब भगवान केंद्र में रहते हैं तो नेचुरली बाकी लोग अपने आप जुड़ जाते हैं. यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा. पेड़ की जड़ में आप पानी डालते हैं तो अपने आप पेड़ हरा भरा हो जाता है. इसको साइंस बोलते हैं. वो जड़ तो आपको दिख नहीं रही है. कोई बोल रहा है भगवान तुम्हें दिख नहीं रहे हैं. पेड़ की जड़ दिख रही है? दिख रही है जड़? जड़ नहीं दिख रही है. पानी कहाँ डालते हैं? वहीं डालते हैं ना, तभी पेड़ हरा भरा होगा. अभी कोई सोचे मैं इस पत्ते में डालूं, उस पत्ते में डालूं, वो भी दुखी हो जाएगा, पेड़ भी सूख जाएगा. तो वही आज की डेट में चल रहा है. ये हाँ, विश्व शांति यज्ञ का प्रयास होता है, वो कमेटी में झगड़ा हो जाता है यज्ञ खत्म होने के पहले. आप भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे, वो साइंस है. वो क्या है? साइंस. वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस व्हिच इज टोल्ड इन द स्क्रिप्चर. तो साइंस क्या है? व्हेन वी कीप गॉड इन द सेंटर. तो यही रहता है. इसलिए पहले आप किसी भी घर जाएंगे, किसी भी घर में देखेंगे, थोड़े 50 साल 100 साल पहले हर घर के ऊपर झंडा लगा हुआ है. घर घर में मंदिर रहते थे. हाँ, आज भी ऐसे वृंदावन में देखिए, वृंदावन आज पास ही, अयोध्या के पास में, हाँ, हर घर के ऊपर झंडा रहता था. झंडा किसका इंडिकेशन है? कि नीचे भगवान का मंदिर. आज घर के ऊपर क्या लगा हुआ है? डिश टीवी एंटीना हर घर के ऊपर लगा हुआ है. और आप लोग आश्चर्य की तरह जाएंगे, बॉम्बे में चाल बोलते हैं उसको, चाल बोलते हैं. चाल, झुग्गी झोपड़ी सुना है आपने? इतना कंजस्टेड रहता है, आप देख लेंगे तो आपको सफोकेशन होने लगेगा. वहां जाने की जरूरत नहीं है. उसमें भी हर घर के ऊपर डिश एंटीना रखा गया. तो जब झंडा ऊपर था, केंद्र में भगवान थे, लोगों में यूनिटी थी. और डिश एंटीना लगा है, तो कहाँ से यूनिटी है? तो ये सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है. As in the paddy fields, unnecessary plants are taken out, so it is expected from the beginning of this topic that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion Shri Krishna was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son Duryodhana and others would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthira would be established by the Lord. This is the significance of the words Dharam Kshetre and Kurukshetre, apart from the हिस्टोरिकल एंड वैदिक इम्पोर्टेंस. तो यहाँ पे क्षेत्र शब्द को एक्सप्लेन किया जा रहा है. क्षेत्र मतलब होता है खेत. खेत क्या होता है? खेत. तो खेत में क्या होता है कि जो वीड्स होती है उसको निकाल देते हैं ना.
जो किसान होता है वो फसल देखता है कि फसल अच्छी रहे और जो वीड्स वगैरह है खरपतवार उसको निकाल देता है। हाँ? इसी तरह धर्म क्षेत्र है, हाँ? और भगवान धर्म के पिता है, तो देखेंगे कि जो भी धर्म के अगेंस्ट है, तो ये पहले से एक्सपेक्टेड है कि कौरवों का नाश होगा। देखिए कोई भी गलत क्रिया हम करते हैं ना, जब आदमी गलत क्रिया करता है वहीं से उसका नाश शुरू हो जाता है, रिजल्ट में बस टाइम। चोर चोरी करता है, हाँ, बस इट इज टाइम इज सेपरेटिंग, बस टाइम का अंतर है। जब से उसने चोरी शुरू की उसका गलत टाइम शुरू हो जाता है। आप सोचेंगे नहीं पुलिस ने तो उसको पकड़ा नहीं, अगर पैसे देके छूट गया, ये सब डिटेल है। अभी देखिए सपोज किसने चोरी की है, अब वो कहीं घूम रहा है ऐसे और पुलिस को देख लिया उसने, क्या होगा उसको? टेंशन हो जाएगी ना। गलत काम पहले ही व्यक्ति को मारने लगता है। अब बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए, हाँ, आपको टीटी का दर्शन हो गया, टेंशन हो जाएगी कि नहीं अपने आप? वो आपसे पूछ ही नहीं रहा है कुछ, वो वहां खड़ा है। हाँ? अधर्म में व्यक्ति को पहले ही कमजोर कर देता है, गलत काम करने में ही व्यक्ति चला जाता है। बाकी डिटेल भी होगा, बाद में पकड़ा जाता है चोर तो उसका स्वागत भी किया जाता है, लेकिन पहले से ही तो शास्त्र हमको सिखाते हैं हाउ वी शुड लीड अ लाइफ, हाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स। तो शास्त्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड जब व्यक्ति लाइफ जीता है तो लॉन्ग टर्म में उसको सक्सेस मिलता है और इटर्नली वो सेटिस्फाई रहता है। अब हृदय में संतुष्ट रहता है और एंड्योरिंग सक्सेस मिलता है, नहीं तो शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलता है अगर मिल गया तो, और उसको एंजाइटी ज्यादा होती है। तो दैट इज व्हाई इट इज टोल्ड दैट वी हैव टू लिव आवर लाइफ बाय वैल्यूज। भगवत गीता इसलिए क्या है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए। जैसे पहला चैप्टर है पीपल, इट इज टीचिंग दैट डोंट लीव द प्रॉब्लम्स, लर्न फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। अर्जुन की प्रॉब्लम हुआ ना, अर्जुन को अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा भगवत गीता के पहले चैप्टर में ये है, भगवत गीता कैसे स्टार्ट हुआ? अर्जुन को प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम में अर्जुन साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गया, उसको डिप्रेशन नहीं हुआ, प्रॉब्लम से इमर्ज हुआ विक्टोरियस। तो भगवत गीता सिखाता है डोंट लीव द प्रॉब्लम्स, लर्न फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। ये भगवत गीता सिखाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या सिखाते हैं? ट्रेन योर बॉडी। भगवत गीता सिखाता है ट्रेन योर माइंड। 6th चैप्टर में ट्रेन योर माइंड, क्योंकि माइंड अगर स्ट्रांग है तो बॉडी भी अच्छे से काम करेगी, और माइंड अगर वीक हो गया, कितना भी स्ट्रांग व्यक्ति है वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता। ये क्योंकि जो माइंड है वो बॉडी को डोमिनेट करता है, जो माइंड है वो बॉडी को क्या है? डोमिनेट करता है। आपका एकदम फेवरेट डिश बनाए, घर में आपका रिजल्ट निकलने वाला था, मम्मी को लगा आप तो टॉप करने वाले हैं, मेरा बेटा आज टॉप करेगा, और आपको रसमलाई पसंद थी, मदर ने रसमलाई बनाई है, आप फेल हो गए। और रसमलाई मीठी लगेगी? रसमलाई तो ऐसे ही है, माइंड पे बहुत कुछ है। भगवत गीता टीचर्स अस ट्रेन द माइंड। मॉडर्न वर्ल्ड सेज यू बी द बेस्ट, भगवत गीता सेज ट्राई योर बेस्ट। ट्राई योर बेस्ट, साइकोलॉजी का अंतर है। जो सोच रहा है बी द बेस्ट वो ट्राई करता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा स्टेज पे नहीं रहता है। 1970s के हीरो अलग थे, 80s के अलग थे, 90s के अलग थे, करेक्ट? सबके हीरोज अलग हैं। एक समय पे स्टेज छोड़ना पड़ता है, बट व्हेन यू ट्राई योर बेस्ट यू कैन कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम यू कैन। व्हेन यू ट्राई योर बेस्ट, 100 मीटर के स्प्रिंट में जो रिकॉर्ड था, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड था, एक व्यक्ति ने उसको ब्रेक किया। जिसने उसको ब्रेक किया उससे पूछा कि कैसे इसको ब्रेक कर दिया? इट वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग अकॉर्डिंग टू पीपल। ही सेड हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। किससे आप कंपटीशन कर रहे थे, कैसे वो कर रहे थे? तो ही वाज टेलिंग आई वाज जस्ट कंपीटिंग विद माय सेल्फ। He just kept on improving himself and he broke the record. तो ये साइकोलॉजी में अंतर है। इसी तरह लाइफ में लोग क्या है, उनका टू डू लिस्ट रहता है।
लेकिन भगवत गीता से हमको पता चलता है टू बी लिस्ट, क्या बनना है, अंदर क्या वैल्यू सिस्टम आना चाहिए। बहुत कुछ सीख लिया, अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं है। जैसे कंप्यूटर है, हार्डवेयर एकदम मस्त लग रहा है और अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया क्या होगा? सॉफ्टवेयर क्या है? अंदर का वैल्यू सिस्टम। तो ये हार्डवेयर है। क्या कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है, वो लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, स्किल्स में एक्सपर्ट है, प्रोग्रामिंग अच्छी है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, बाइसेप्स अच्छे हैं, ट्राइसेप्स अच्छे हैं, लेकिन ये क्या है? ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर भी ठीक होना चाहिए हाँ? लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं है दिक्कत होगी ना। सॉफ्टवेयर क्या है? वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम कहाँ से आएगा? कोई कॉलेज नहीं है उसके लिए, कोई स्कूल नहीं है, वो शास्त्रों से ही आता। That's how we have to understand what is given in these shastras. It can make a complete person, not Raymond the complete man. वो गलत है। Raymond shooting पहनने से नहीं होगा। The person has to become complete. He has to understand the value system given in the shastras. So, thank you. Very grateful to all of you for patient listening. So, we'll little bit revise. Anybody have any questions? किसी कोई क्वेश्चन है? ऑलरेडी वैसे आप लोगों ने काफी सुन लिया। सुनना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में। कॉलेज में हम लोग क्लास में जाते हैं लेकिन सुनते नहीं। वो भी हम लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं। जैसे आर्मी वाले रहते हैं, वो इतना मार्च पास्ट करते हैं, कभी कभी मार्च पास्ट करते हुए सो जाते हैं, इतना थके होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी एम्पावर्ड हो जाते हैं, क्लास में हैं पर वो रहते नहीं। Anybody has any question? तो आप में से कुछ लोग we can little bit revise the session. आप में से कुछ जो सेशंस में हमने कुछ डिस्कस किया, कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, बाकी लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। शेयर करना चाहेगा कोई? Anybody? Yes. एक बेस्ट पॉइंट था कि उन्होंने क्यों मतलब युद्ध के वक्त क्यों ये शुरू किया। ये काफ़ी इंसाइटफुल था कि क्या कहते हैं, टाइम बहुत है, मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम नहीं हो सकता। तो आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं क्योंकि कलयुग में इसकी ज़रूरत है। Yes, thank you very much. Very important because nobody can say that I don't have time. Yes. Yes. युद्ध के लिए क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो क्षेत्र कहाँ है? हाँ, तो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो क्षेत्र है उसका प्रभाव रहता है। लाइब्रेरी जा रहे हैं तो स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की जगह पे हैं तो स्पोर्ट्स अच्छे से खेल सकते हैं। तो इसलिए हमको देखना है कि जिस क्षेत्र में है हम उससे अनफेवरेबली अफेक्ट ना हो, अनफेवरेबल उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो, ये हमको देखना है। यस सर, जो डेली लाइफ चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस करना है, वो मतलब जो बताएं उन्होंने ना कि युद्ध करते समय उन्होंने क्या किया, तो वो चीज़। तो भगवान ने युद्ध के टाइम ज्ञान दिया। एक और रीजन है क्योंकि लाइफ इज लाइक अ बैटल। बैटल मीन्स व्हाट? हाउ लाइफ इज अ बैटल, बिकॉज एवरी डे वी हैव टू चूज। करेक्ट? हम लोग सुबह उठना चाहते हैं जल्दी, पर जैसे ही सुबह उठने का टाइम आता है चॉइस करना है, उठना है कि सोना है। ठीक है, कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, चॉइस करना है, पढ़ना है कि नहीं। एवरी डे देयर इज चॉइस, and Bhagavad Gita teaches us how to make right choices in the battlefield of life. Yes. स्टार्टिंग से जैसे हमने सुना कि मतलब पहले से ही कि हम जिस भी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उस कर्तव्य का पालन हमें पूरी शुद्धता और शुद्धता के साथ करना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र थे तो राजा के पद पे थे, उन्हें अपने पुत्र में और पांडवों के पुत्रों में कोई अलगाव नहीं करना चाहिए था, उन्हें सबको समदृष्टि से देखना चाहिए था। दूसरा यह है कि हमें अपने क्षेत्र का चुनाव बहुत ही सटीक दृष्टि के साथ करना चाहिए। तीसरा ऐसा है कि आपने जैसे बताया कि अगर कोई चोर चोरी करता है उसका परिणाम उसे तुरंत नहीं मिलता है, यानी कि हम कर्मों के प्रतिफल को तो देखते हैं अपने जीवन में,
लेकिन हमने कर्मों का जो बीजारोपण किया उससे हम नहीं देखते हैं, लेकिन कर्मों का बीजारोपण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम कर्म के प्रतिफल को देखते हैं तो उससे ज़्यादा ध्यान हमारे कर्म के बीजारोपण पर भी होना चाहिए, हम किस प्रकार के कर्म हो रहे हैं, इसका फल हमें भविष्य में मिलने वाला है। So the third point, and it is very important for us. This third point that देखिए कोई भी कर्म हम करते हैं वो कर्म क्या होता है, हम लोगों को लगता है जनरली कलयुग में हम लोग समाज में अच्छा काम करते हैं। रेपुटेशन मीन्स व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस, कैरेक्टर मीन्स व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वाचिंग। तो चरित्र के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं रहती लोगों को, करेक्ट, लेकिन आदमी को टेंशन है रेपुटेशन के बारे में, लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको समझिए। गलत हैबिट्स मत लगाइए। गलत हैबिट हम करते हैं अकेले में, हमको लगता है कोई कुछ देख नहीं रहा है, बहुत डिफिकल्ट होता है उससे। जैसे जो चोर है वो चोरी किया उसने, उसी समय से एक तो उसको रिजल्ट मिलेगा जब पुलिस पकड़ेगी, एक रिजल्ट मिलेगा उसी समय से, वो हमेशा भय में रहेगा। तीसरा क्या है, चोरी करने का जो संस्कार है। एक बार चोरी किया ना, वापस से वो वापस से चोरी करता है। वो जो संस्कार पैदा हो जाता है बहुत मुश्किल है निकालना। हम लोग कुछ भी करते हैं, आप बहुत ध्यान रखिए, इंद्रियों को गलत चीजों का जो हैबिट लगा देते हैं ना, इसीलिए गुरुकुल में सबसे पहले माइंड कंट्रोल सिखाया जाता था। उसके बाद 64 कलाएं आदमी बहुत जल्दी सीख जाता था। आज 5 सब्जेक्ट में हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल है नहीं, माइंड कंट्रोल कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि माइंड कंट्रोल फाउंडेशन है लर्निंग। तो माइंड कंट्रोल मतलब सेंसेस रिस्ट्रेंट रहना चाहिए। देखिए वो एनालॉजी नचिकेता को यमराज जी ने दिया है कि जो 5 रथ है, ये जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे कोई रथ है उसमें 5 घोड़े हैं, एक सारथी है, एक पैसेंजर है, जो पैसेंजर को क्या बोलेंगे, यात्री है, ठीक है, और एक लगाम है। तो जो 5 घोड़े हैं वो क्या है, 5 इंद्रियां हैं, एनालॉजी दी है। लगाम क्या है, मन, और जो सारथी है बुद्धि, और पैसेंजर क्या है, जीवात्मा, ठीक है। अब 5 घोड़े हैं, ठीक है। गाड़ी में आपने स्टीयरिंग देखी है, हाँ, स्टीयरिंग फेल हो गई तो क्या होगा, एक्सीडेंट निश्चित है। स्टीयरिंग फेल हो गई है तो एक्सीडेंट निश्चित। कभी आपने देखा ना रोड के बाजू में बड़े बड़े डंपर वगैरह गिरे रहते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे जैसे, तो एकदम था, तो जब मैंने ड्राइवर से पूछा, एकदम मतलब ट्रक ड्राइवर मेरे पास एक बैठा हुआ था, तो मतलब ये ऐसे कैसे हो गया है इसका, तो बोला गुरुजी का स्टीयरिंग फेल है। स्टीयरिंग फेल हो गया तो नहीं बच सकता ऐसा। अब 5 घोड़े हैं ये स्टीयरिंग की तरह। अब सपोज सबने पी रखी है, 5 डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो गया हालत उसकी, ये 5 इंद्रियां। तो अगर इंद्रियां व्यक्ति की नियंत्रित नहीं है तो उसका डेस्टिनेशन कैसे निश्चित हो, मन लगाम है। तो इसीलिए बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। बुद्धि क्या है, सारथी है। तो अगर सारथी स्ट्रांग है, अगर सारथी को एड्स हो रखा है तो वो घोड़े ही लेके जाएंगे, जान लेके जाएंगे, ऐसा है। इसीलिए सारथी स्ट्रांग चाहिए, बुद्धि, तभी वो खींच सकता है। तो अभी क्या है, इसीलिए घोड़ों के आगे वो लगा देते हैं ऐसे, देखा है आपने, लेकिन हम अपनी इंद्रियों के आगे ऐसे लगा नहीं सकते ज्यादा। तो इंद्रियों में क्या होता है, जो भी इंप्रेशन आता है वो उनकी हैबिट लग जाती है। जैसे अगर आपने एक बार इंटरनेट का मिसयूज कर लिया, आपने कुछ गलत देख लिया, कुछ मूवी देख लिया, कुछ गलत सीन देख लिया, आपको लगा कोई तो मुझे देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं, अब आप देखिए आप विक्टिम बनते हैं। आप देखेंगे दोबारा उसको, फिर थोड़े टाइम बाद, जब भी एक्चुअली मन प्लेजर ढूंढता है, तो जैसे ही आप वीक होंगे, कभी बोर हो रहे हैं कुछ, वापस से आप वही खोल के देखेंगे, फिर वही खोल के देखेंगे, अब आप एडिक्ट हो गए उसको, समझ गया, पैरालाइज्ड हो गया। ये तो मैंने आपको जस्ट एक ग्रॉस छोटा सा एग्जांपल दिया। किसी की हैबिट है वो दिन भर व्हाट्सएप देखता है, तो आप देखो आदमी कितनी बार, अगर एक स्टॉप वॉच लगा दी जाए यहाँ पे, कितनी बार आदमी व्हाट्सएप देखता है तो वो हो जाएगा उसका। ये सब क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, ये ऐसे नहीं कि यूज करना है, लेकिन
स्मार्टफोन है, उसको यूज करने के लिए स्मार्टनेस चाहिए। आदमी डल होते जा रहा है स्मार्टफोन यूज करते करते। ये तो कोई भी इंद्रियों का आप ऐसे मिसयूज करते हैं, किसी भी सेंसेस का, अब वो क्या है, उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो बीज है, जो कर्म की वासना है, वो जाती नहीं। इसलिए इंप्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। संस्कार जाते नहीं है, संस्कार को छुटाने में व्यक्ति की हालत हो जाती है। आप देखो एडल्ट मूवी थिएटर के बाहर जाके देखो, 70 साल का आदमी भी खड़ा है लाइन में। हाँ, ये लिखा रहता है ना मूवीज में, 70 साल का आदमी वॉच कर रहा है। देखो, आप सोचो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई होगी। ये तो गलत हैबिट्स अभी से मत लगाइए किसी भी चीज़ का, बाद में उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर लोगों की फैमिली, ये सब बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। ये तो मैंने आपको एक हैबिट बताया। हाँ, इसी तरह कोई भी, मेरा एक AIT का एक स्टूडेंट है, डेनमार्क में अभी पोस्ट डॉक कर रहा है। पोस्ट डॉक कर रहा है मेंटल डिप्रेशन। सैलरी तो उसकी बहुत है, 90 लाख कुछ है। डिप्रेशन में मैंने बोला भाई तूने ये टॉपिक क्यों चुना? AIT वॉइस में था हमारे आर्मी कॉलेज में वॉइस में, तो क्योंकि वो खुद भी टेंशन में रहता था कभी कभी, तो मतलब यही टॉपिक क्यों चुना? बोला इसके लिए सबसे ज़्यादा ग्रांड एग्जाम्पल। और 1 महीने में मेरा उससे जूम मीटिंग होता है, वो छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें इतना मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करना, ये चेक करना, इससे फ्रस्ट्रेट है। और पोस्ट डॉक कर रहा है, मतलब PhD के बाद होता है। तो देखिए ऐसा लाइफ नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है? सॉफ्टवेयर, इसलिए ध्यान रखना है क्या करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Yes, 1 2 more, somebody want to share 1 2 more points from the class? हमें आज की क्लास से पता चला डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव, कि अटैचमेंट जो होता है उसमें सेक्रीफाइस नहीं होता, और लव में जो होता है उसमें सेक्रीफाइस भी मतलब होता है, ताकि लॉन्ग टाइम जो वो मतलब अच्छा होता है। Yes, attachment और love. Attachment makes one hard hearted. Attachment में व्यक्ति हार्ड हार्टेड हो जाता है। आप देखेंगे जितने मर्डर होते हैं, क्योंकि लस्ट में अटैचमेंट होता है। हाँ, बॉय गर्ल के जितने रिलेशन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं। तो मर्डर कैसे हो गया भाई? वो तो प्रेम कर रहा था। मर्डर कैसे हो गया? वो तो प्रेम कर रहा था। तो वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, और जहाँ आसक्ति है वो हृदय को कठोर बना देती है। धृतराष्ट्र दुर्योधन से आसक्त था, 64 करोड़ों का बलिदान हो गया उसके कारण। लव मीन्स व्यक्ति लॉन्ग टर्म वेलफेयर देखता है। माँ बच्चे से प्रेम करती है तो उसको थप्पड़ भी लगा सकती है, ऐसा नहीं कि माँ हमेशा प्रेम करती रहेगी, वो थप्पड़ भी लगाएगी जब जरूरत होगी। तो ये होता है लव। लव मीन्स इट्स नॉट प्लेजेंट ऑल द टाइम, whatever is necessary। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। अटैचमेंट से व्यक्ति वीक हो जाता है, अटैचमेंट का कॉस्ट बहुत हाई रहता है। गलत चीज से अटैच हो जाता है, जितनी जो चीज से अटैच होगा तो वो चीज के प्रति अभी वो क्या है, वो चीज उसका मैक्सिमम टाइम लेगी। जहां जहां हमारा अटैचमेंट है, किसी का अटैचमेंट है मोबाइल से, मोबाइल में व्हाट्सएप देख, किसी का चैटिंग से अटैचमेंट हो जाता है, लोग चैट करते हैं। आप एक बार स्टॉपवॉच लगा के देख लो कितना टाइम जा रहा है उसमें दिन में। तो जहां अटैचमेंट होता है ना, जहां भी अटैचमेंट हो गया, तो अटैचमेंट अच्छी जगह होना चाहिए, ये पॉइंट है। अगर अटैच व्यक्ति हो रहा है तो वो अच्छी जगह, जैसे पांडवास है वो भी अटैच थे लेकिन भगवान से। तो अटैचमेंट अगर पॉजिटिव व्यक्ति के लिए हो गया बहुत, तो व्यक्ति का ग्रोथ होता है। नेगेटिव जगह हो गया तो डिस्ट्रक्शन। ओके, वन लास्ट, somebody wants to share one last point? Okay, yes, yes। जैसे आपने बताया कि भगवान अगर सेंटर में है तो लव होगा, अगर लव एंड केयर होगा, तो एक्चुअल में भगवान सेंटर में होना चाहिए, एक सेंटर में होना चाहिए। तो जो स्पिरिचुअल लाइफ है, कई बार लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स वी विल बिकम लेस एम्बिशियस, वी विल बिकम लेस इफेक्टिव
and we will become less focused and less organized. We may leave the world like that. But actually spiritual life is not like that. Spiritual life is a necessity, it's not an option. जो आध्यात्मिक जीवन है ये विकल्प नहीं है, ये नेसेसरी है हर व्यक्ति के लिए. और वो बात अलग है, आप आज पकड़ो, 5 साल बाद पकड़ो, 10 साल बाद पकड़ो. तो हम लोग तो एनीवेज मिलते रहते हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर से लेके पॉलिटिशियंस तक, तो सबको पकड़ना पड़ता है. अब जब व्यक्ति जाके उसके ऊपर, यू कांट अवॉइड इट. क्यों? जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, ट्रेन 2 पटरी में चलती है, तो 2 पटरी चाहिए. आप कुछ भी कर लो, एक पटरी कितनी भी स्ट्रांग है, आपको 2 ही पटरी चाहिए. एक पटरी में ट्रेन नहीं चल सकती. एक पटरी है मटेरियल लाइफ, एक है स्पिरिचुअल लाइफ. अगर ये दोनों नहीं रहेंगी तो लाइफ में इम्बैलेंस बना रहेगा. आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे. दोनों चाहिए, ऐसा नहीं कि मटेरियल नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल भी चाहिए, बैलेंस चाहिए. बैलेंस नहीं रहेगा तो लाइफ कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि लाइफ के मेन क्वेश्चन के आंसर ही नहीं है ना. अगर स्पिरिचुअल पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अभी किसी कोई नोबेल प्राइज विनर है, हाँ, 2 पैकेट सिगरेट पीता है रोज, क्या बोलेंगे आप? सक्सेसफुल है, फेलियर है? इसको बोलते हैं वन साइडेड सक्सेस. समझ गया? इसको बोलते हैं वन साइडेड सक्सेस. व्यक्ति है, उसका 4 करोड़ का पैकेज है, 3 डाइवोर्स हो चुके. सक्सेस है, फेलियर है? ये वन साइडेड सक्सेस है. IIT में क्यों सुसाइड्स होते हैं? ये यही रीजन है ना. हाँ? बहुत सारे कलेक्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, डाइवोर्स हैं. आप अगर स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं डालेंगे, लाइफ बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा. केवल आप मटेरियल पकड़ के चलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की एक स्पिरिचुअल रियलिटी है ना. हाँ? हमारा बहुत अच्छा जॉब लग गया, लेकिन घर में फादर की डेथ हो गई, रेडी है उसके लिए? समझ रहे हैं आप? एक्चुअली लाइफ क्या है? इट्स कंबाइंड कॉम्बिनेशन. देयर इज अ रियलिटी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस. दैट इज व्हाई बोथ थिंग्स. सो जब स्पिरिचुअल लाइफ रहता है, मटेरियल लाइफ रहता है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. अगर कोई स्टूडेंट है, ही विल बिकम बेटर स्टूडेंट. हर जगह वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ज़्यादा फोकस हो जाएगा, उसका माइंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. ये रिजल्ट है स्पिरिचुअल लाइफ का. इसीलिए भगवान ने, ये भी एक रीज़न है कि अर्जुन को नॉलेज दिया. तो अर्जुन सन्यासी नहीं था. अर्जुन की वाइफ है, अर्जुन की 2 वाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ है. नहीं तो कोई सोचेगा ये तो सन्यासी लोगों के लिए नॉलेज है, इन लोगों को तो कुछ करना नहीं है, तो लेक्चर दे, सब छोड़ दिया इन्होंने. अर्जुन को दिया. अर्जुन संसार में था और बहुत सक्सेसफुल पर्सन था. एक दूसरा रीजन, कोई व्यक्ति सोचेगा स्पिरिचुअल नॉलेज रहती है, किसी का कुछ हुआ नहीं. जैसे व्यक्ति कोई ज्वाइन कर लेता आश्रम, तो कई बार आश्रम में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ लाइफ में, आप यहाँ पे आ गए, कौन सा ऐसा हादसा हो गया कि आपको ये करना पड़ा. तो ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहती है कि किसी के साथ, बेचारे के साथ कुछ दुर्भाग्य हो गया, हादसा हो गया, तो इसको सब छोड़ना पड़ा. इसलिए भगवान ने अर्जुन को नॉलेज दिया. अर्जुन वॉज नंबर 1 आर्चर. यू अंडरस्टैंड? नंबर 1 इन द वर्ल्ड. He was number 1 archer, most successful archer. He went in the same body to heavens. तो भगवान दिखाना चाहते थे कि सबके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ. दूसरा चीज दिखाना चाहते थे, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, यू नीड स्पिरिचुअल नॉलेज. तो अर्जुन इतना सक्सेसफुल था मटेरियली, इतना कॉम्पिटेंट था, स्टिल ही नीडेड. दैट्स द पॉइंट. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की